Good morning. In my previous lecture, I let you know about research, wide classification of research into two parts, that is quantitative research and qualitative research, and the names of various research methods such as basic research, applied research, historical research, empirical research, descriptive research, exploratory research, explanatory research and experimental research. पिछले व्याख्यान में मैंने बहुत संक्षेप में अनुसंधान अथवा शोध का सामान्य परिचय दिया और इसके साथ साथ ये बताने का प्रयास किया कि अनुसंधान को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, परिमाणात्मक अनुसंधान अर्थात क्वांटिटेटिव रिसर्च और गुणात्मक अनुसंधान अर्थात क्वालिटेटिव रिसर्च। आज इस व्याख्यान में मैं एक एक करके जितने भी रिसर्च के टाइप्स हैं, जितने भी प्रकार हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो माय फोकस इन दिस लेक्चर is to take up the various types of research one by one and to focus on them. Anyway, keeping in mind and considering the time constraints of the lecture, I would like to discuss here only the basic research and the applied research. इस व्याख्यान में समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए मैं केवल अनुसंधान के दो प्रकारों की बात करूंगा और ये दो प्रकार हैं बेसिक रिसर्च और एप्लाइड रिसर्च, अर्थात मौलिक रिसर्च, मौलिक अनुसंधान पद्धति, और दूसरा है व्यावहारिक अनुसंधान अर्थात व्यावहारिक अनुसंधान पद्धति। सो लेट अस बिगिन विथ द मीनिंग ऑफ रिसर्च, व्हाट इट मीन्स। Once again, we should keep in our mind that research is defined as a systematic and scientific process to answer questions about facts and relationship between facts. It is an activity involved in seeking answer to unanswered questions. तो अनुसंधान को हम एक ऐसी व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो तथ्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देती है, साथ ही तथ्यों के मध्य क्या संबंध है उस संबंधों को बताती है। सो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च इज द master key over all the problems or over the understanding of all the problems that occur in our phenomena. Now, once again, I would like you to keep in your mind that research is of various types. And here I am mentioning only 8 types of research. अनुसंधान के अनेकों प्रकार हैं। मैं इस व्याख्यान में केवल 8 प्रकारों का संदर्भ दूंगा। एंड these 8 types of research are basic research, applied research, historical research, empirical research, descriptive research, exploratory research, explanatory research and experimental research. तो ये 8 अनुसंधान के प्रकार मैंने आपको बताए हैं। तो जैसे कि बेसिक रिसर्च का हिंदी रूपांतरण होता है मौलिक अनुसंधान या मौलिक शोध। एप्लाइड रिसर्च
को हिंदी में व्यावहारिक अनुसंधान अथवा व्यावहारिक शोध कहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च को हिंदी में ऐतिहासिक अनुसंधान अथवा ऐतिहासिक शोध कहते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च को हिंदी में अनुभविक अनुसंधान अथवा अनुभविक शोध कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हिंदी रूपांतरण वर्णनात्मक अनुसंधान अथवा वर्णनात्मक शोध होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हिंदी रूपांतरण अन्वेषणात्मक अथवा खोजी अनुसंधान अथवा खोजी शोध होता है। एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का हिंदी रूपांतरण व्याख्यात्मक अनुसंधान या व्याख्यात्मक शोध होता है। और इसी प्रकार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हिंदी में हम परीक्षणात्मक अथवा प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग अप बेसिक रिसर्च. Basic research is a very important, or say the most important type of research which is conducted in order to develop theories, develop concepts, formulate theories, etc. So let us first discuss the meaning of basic or pure research. Basic research is called pure research. It is also called fundamental research. So, basic research, pure research, and fundamental research are the synonyms of one and the same type of research. And it has the scientific research aim to improve scientific theories. The objective, the specific aim, the specific objective of pure research or basic research is to improve scientific theories. For improved understanding, theories are improved, theories are developed for improved and better understanding or prediction of natural or other phenomena. So, basic research is well known to the natural scientists, and this type of research has its specific purpose, its specific aim, and this specific aim is to develop and improve scientific theories and better understanding of the phenomena. Basic research, pure research, फंडामेंटल रिसर्च, जिनको हिंदी में हम आधारभूत, मूल, मौलिक, विशुद्ध अनुसंधान कह सकते हैं, इस प्रकार के अनुसंधान का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है साइंटिफिक थ्योरीज, वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को विकसित करना, या जो फिनोमेना है, चाहे वो नेचुरल फिनोमेना है या सोशल फिनोमेना है, उसकी इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग के बारे में, उसकी समझदारी के बारे में प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना. बेसिक रिसर्च एडवांसेज फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड. वैज्ञानिक जितना जानते हैं उससे अधिक जानना चाहते हैं. उस जानने में, उस समझने की प्रक्रिया में आगे क्या है, इसको करने के लिए, फिनोमेना को और अच्छे से समझने के लिए बेसिक रिसर्च की जाती है. इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड रिफ्यूटिंग और सपोर्टिंग थ्योरीज. बेसिक रिसर्च का जो फोकस होता है वो सिद्धांत निर्माण का होता है, या सिद्धांतों का खंडन किया जाता है इसके द्वारा, या सिद्धांतों का समर्थन किया जाता है. तो सिद्धांतों का निर्माण, सिद्धांतों का खंडन अर्थात रेफ्यूटिंग,
और सिद्धांतों का समर्थन बेसिक रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है। वो थ्योरी दैट एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट फिनोमेना, वो सिद्धांत जो फिनोमेना की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बेसिक रिसर्च अपने आप में रिसर्च का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। प्योर रिसर्च इज द सोर्स ऑफ मोस्ट न्यू साइंटिफिक आइडियाज एंड वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। जो बेसिक रिसर्च है, ये अनुसंधान एक बहुत बड़ा स्रोत है जो नवीन वैज्ञानिक विचार हैं, अगर हम उनको जानना चाहते हैं, क्योंकि नवीन वैज्ञानिक विचार संसार के बारे में, फिनोमेना के बारे में आते रहते हैं, और अगर हम जानना चाहते हैं संसार के बारे में, फिनोमेना के बारे में, तो प्योर रिसर्च ही उसका एक स्रोत है। उसके माध्यम से ही हम फिनोमेना को समझ सकते हैं, उसके माध्यम से ही हम नवीन साइंटिफिक आइडियाज को ग्रहण कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च जनरेट्स न्यू आइडियाज, तो ये नवीन विचारों को जनरेट करती है, उत्पन्न करती है। प्रिंसिपल्स नवीन सिद्धांतों को जनरेट करती है, उत्पन्न करती है। थ्योरीज सिद्धांतों को जनरेट करती है, which may not be immediately utilized, ऐसे सिद्धांत, ऐसे विचार जिनको तुरंत यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन nonetheless form the basis of progress and development in different fields। लेकिन ये रिसर्च, ये विचार, ये अनुसंधान, ये थ्योरीज, ये प्रिंसिपल्स, ये विभिन्न क्षेत्रों के विकास में एक बहुत बड़ा आधार का काम करते हैं। तो इसीलिए इसको आधारभूत अनुसंधान भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्योर और बेसिक रिसर्च, and the specific purpose of the basic research is to understand the phenomena, develop the phenomena, have new scientific ideas, to develop theories, to refute theories, and to support the theories। So it's a very important type of research। Next, I'm coming to applied research। Actually, Goodey and Hart classified the whole research into two parts: basic research and applied research। So we have already understood basic research, and now we are moving to the understanding of applied research। Let us know what it means। गुडे और हार्ट का जो अनुसंधान के प्रकारों का वर्गीकरण है, आपने अनुसंधान को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है, दो प्रकार इसके बताए हैं: बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। मौलिक अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान के बारे में हम समझ चुके हैं। मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सिद्धांतों का निर्माण करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों का खंडन करना। यदि कोई सिद्धांत गलत है तो वो भी बेसिक रिसर्च के माध्यम से ही हो पाता है। और बेसिक रिसर्च का जो अगला उद्देश्य वो है सिद्धांतों का समर्थन करना। बेसिक रिसर्च के जानने के बाद अब हम बात करेंगे अप्लाइड रिसर्च के बारे में। बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च are two different terms and often go side by side। Basic research
relates to the theoretical aspect of the problem, while applied research relates to the practical aspect of the problem. So now let us move to the understanding of applied research, what it means. Applied research is the practical application of science. As I have already told you, applied research refers to the practical application of science, practical application of theories. It accesses and uses accumulated theories. There are many theories, and through the applied research method, the scientist uses those theories. He uses knowledge, he uses methods and techniques for a specific purpose. So, whatever is studied by a scientist through the various theories, through the various scientific theories about a problem, about phenomena, is applied in the applied research. Applied science deals with solving practical problems. So, through it, the practical solution of the problems is found, or say practical problems are solved, and generally employs empirical methods to solve the problems. And in applied research, empirical methods are used to solve the problem. So, since applied research has a provisional close to the problem and close to the data orientation, so applied research is data oriented and problem oriented. It may also use a more provisional conceptual framework such as working hypotheses or pillar questions. So it is all about the basic and applied research. तो इस व्याख्यान में मेरा प्रयास था आपको मौलिक अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान के अर्थ से परिचित कराना। किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष। तो हम इन दोनों जो टाइप्स हैं रिसर्च के, हम ये कह सकते हैं कि बेसिक रिसर्च अर्थात मौलिक अनुसंधान किसी भी समस्या का सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है, तो व्यावहारिक अनुसंधान समस्या के व्यावहारिक पक्ष से है, संबंधित है। दोनों ही प्रकार के अनुसंधान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। I hope that you must have understood what I tried to serve you through this lecture. Thank you so much.